Hi friends, once again welcome on our YouTube channel S Academy. This is our another lesson of power electronics. In our earlier session, we have discussed about power diode, power MOSFET and IGBT. In our this session, we will discuss about MCT, means MOS controlled thyristor. So now we will start MCT. So MOS controlled thyristor. In our this session, we will discuss about MOS controlled thyristor, that is MCT, and advantage of MCT. So first of all, MOS controlled thyristor or MCT. It is basically a thyristor with two MOSFETs built into the gate structure. तो ये वास्तव में एक थायरिस्टर है जिसमें दो मॉसफेट होते हैं एंड दे आर बिल्ट इनटू द गेट स्ट्रक्चर, जो कि एक गेट स्ट्रक्चर में बिल्ट किए हुए होते हैं. आउट ऑफ टू मॉसफेट, one MOSFET is used for turning on the MCT and the other for turning off the device. So दो MOSFET में से एक MOSFET हमारा MCT को टर्न ऑन करने में यूज होता है, जबकि दूसरा MOSFET इस डिवाइस को टर्न ऑफ करने में यूज होता है. MCT is basically a high frequency, high power, low conducting drop switching device. So MCT हमारी high frequency, high power and low conducting drop switching device है. So MCT is a high frequency, high power, low conducting drop switching device. Now, this is our basic structure of MCT. In this, here we have N plus substrate, here P buffer, here P minus layer, and this is our off FET channel or N channel, and this is our on FET channel or P channel. So this is on FET and this is off FET. This is J1 junction, which is the junction between P and N. This is J2 junction, which is junction between N and P minus layer, and this one is our J3 junction. Here we have cathode, which is on the metal layer. Here we have SiO2 layer. This is gate and this is also gate, and this terminal is our anode. So three terminals of MCT are anode, gate and cathode. A practical MCT consists of thousands of these basic cells connected in parallel, just like a power MOSFET. A practical MCT consists of thousands of these basic cells which are connected in parallel, just like a power MOSFET. तो एक प्रैक्टिकल एमसीटी में इस प्रकार के थाउजेंड्स बेसिक सेल होते हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, एंड दिस कनेक्शन इज जस्ट लाइक अ पावर मॉसफेट. तो जैसा अरेंजमेंट हमारा पावर मॉसफेट में होता है, सेम टू सेम अरेंजमेंट हमारा एमसीटी के अंदर है. तो एमसीटी में
thousands बेसिक सेल्स पैरेलल में जुड़े हुए हैं, सेम लाइक अ पावर मॉसफेट. This is done to achieve a high current carrying capacity of the device. तो ये जो अरेंजमेंट है ये बेसिकली हाई करंट कैपेसिटी डिवाइस को अचीव करने में काम में लिया जाता है. सो दिस इज डन टू अचीव अ हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द डिवाइस. तो डिवाइस की हाई करंट कैपेसिटी हो या हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी हो, इसलिए हम ये सारा अरेंजमेंट करते हैं. The equivalent circuit of MCT consists of one on FET and one off FET and two transistors. तो ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका अगर इक्विवेलेंट सर्किट लें तो उसके अंदर हमारा एक ऑन FET होगा, एक ऑफ FET होगा और साथ में दो ट्रांजिस्टर्स होंगे. The on FET is a P-channel MOSFET and off FET is an N-channel MOSFET. So on FET चैनल जो है वो हमारा P-channel MOSFET है and off FET चैनल जो है वो हमारा N-channel MOSFET है. This is our equivalent circuit of MCT. Here we have one on FET, one off FET and two transistors. One transistor is PNP and another one is NPN. This is cathode. Here we have anode and a gate. An arrow towards the gate terminal indicates N-channel MOSFET and the arrow away from the gate terminal is the P-channel MOSFET. So arrow towards the gate terminal represents the N-channel MOSFET. So here the arrow is towards the gate. So this is our N-channel MOSFET and the arrow away from the gate terminal is the P-channel MOSFET. So here the arrow is away from the gate. So this is our P-channel MOSFET. The two transistors in the equivalent circuit represents that there is regenerative feedback in the MCT just same as in ordinary thyristor. The two transistors in the equivalent circuit represents that there is regenerative feedback in the MCT. तो यहां पर जो दो ट्रांजिस्टर हमारे पास में हैं, तो इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर जो दो ट्रांजिस्टर्स हैं वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहां पर हमारा रीजेनरेटिव फीडबैक होगा या पॉजिटिव फीडबैक होगा. एंड दिस इज एग्जैक्टली सेम एज इन एन ऑर्डिनरी थायरिस्टर. तो ये सेम टू सेम है जैसा कि हमारा एक ऑर्डिनरी थायरिस्टर के अंदर होता है. तो यहां पर एक ऑन चैनल एफईटी है, एक ऑफ चैनल एफईटी है और दो ट्रांजिस्टर्स हैं, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर. और दोनों जो ट्रांजिस्टर्स हैं इक्विवेलेंट डायग्राम के अंदर वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इस सर्किट के अंदर या इस डिवाइस के अंदर रीजेनरेटिव फीडबैक होगा. दिस इज आवर सर्किट सिंबल ऑफ एमसीटी. तो यहां पर हमने एमसीटी का सर्किट सिंबल शो कर दिया है. ये एनोड, ये गेट और ये हमारा कैथोड है. नाउ टर्न ऑन प्रोसेस ऑफ एमसीटी.
अब ये अभी हमने इक्विवेलेंट डायग्राम दिखाया था, इसी के बेस पर हम एमसीटी का टर्न ऑन प्रोसेस शो कर देते हैं बाय अप्लाइंग अ नेगेटिव वोल्टेज पल्स एट द गेट with respect to anode, and MCT is turned on by applying a negative voltage pulse at the gate with respect to anode. So anode के रेस्पेक्ट में हम गेट को एक नेगेटिव वोल्टेज पल्स प्रोवाइड करते हैं और ऐसा करने पर हमारा MCT ऑन हो जाता है। तो ये हमारा एनोड, इस एनोड के रेस्पेक्ट में गेट को आप नेगेटिव पल्स प्रोवाइड करोगे। विथ दिस नेगेटिव वोल्टेज पल्स ऑन FET गेट्स टर्न्ड ऑन एंड द ऑफ FET इज टर्न्ड ऑफ। तो ये हमारा ऑन FET, ये हमारा ऑफ FET। तो जैसे ही आपने गेट को नेगेटिव पल्स प्रोवाइड की है विथ रेस्पेक्ट टू एनोड, तो ये जो हमारा ऑन FET है ये हमारा टर्न ऑन हो जाता है, जबकि ऑफ FET हमारा टर्न ऑफ रहता है। अब इससे क्या होगा, दिस टाइम करंट बिगिंस टू फ्लो फ्रॉम एनोड। तो इस केस में इस एनोड से करंट फ्लो होनी स्टार्ट करती है थ्रू ऑन FET, and then as the base current and emitter current of NPN transistor and then to cathode। तो जैसे ही आपने एनोड के रेस्पेक्ट में गेट को नेगेटिव वोल्टेज पल्स प्रोवाइड की है, इस पल्स को गेन करके ऑन FET हमारा टर्न ऑन हो गया था, ऑफ FET टर्न ऑफ हो गया था। अब इस केस में एक करंट हमारी ऑन FET के थ्रू फ्लो होती है और ये जो करंट है ये हमारी एनोड से एंटर करती है, एंड देन एट द बेस करंट IB एंड इमिटर करंट IE ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। और ये जो करंट है ये क्या करता है, ये जो हमारा ऑन FET है, इस ऑन FET में से एनोड के थ्रू करंट फ्लो हो रही है, then at the base current IB and emitter current IE of NPN ट्रांजिस्टर, ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर। तो ये कलेक्टर, ये हमारा इमिटर और ये बेस। तो ये जो एनोड था, तो NPN ट्रांजिस्टर जो है ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर। तो इस NPN ट्रांजिस्टर को जो ये एनोड के थ्रू करंट मिल रही थी ये हमारे ऑन FET के थ्रू होती हुई, ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर। तो इस NPN ट्रांजिस्टर को एनोड से ये जो करंट आ रही थी ये ऑन FET के थ्रू होती हुई इसके बेस को मिलती है और उसके बाद में इमिटर को प्रोवाइड होती है। तो बेस के थ्रू बेस करंट एंड देन इमिटर के थ्रू इमिटर करंट हमारी फ्लो हो रही है और ये जो इमिटर करंट है ये देन हमारे कैथोड के थ्रू मूव करती है। तो जैसे ही आपने नेगेटिव वोल्टेज पल्स गेट को दी है एनोड के रेस्पेक्ट में, एनोड में से करंट जारी है, ये करंट ऑन FET को ऑन कर देती है और ऑफ FET को ऑफ कर देती है, क्योंकि ये यहां पर भी आ रहा है। तो ये जो करंट थी ये करंट यहां से होकर इस NPN ट्रांजिस्टर के बेस को पहुंचती है, फिर इमिटर के थ्रू होती हुई इमिटर करंट की फॉर्म में जाती है और देन हमारे कैथोड में चली जाती है। दिस टर्न ऑन ट्रांजिस्टर, तो ये जो हमारी करंट थी ये हमारे इस ट्रांजिस्टर को टर्न ऑन कर देती है, एंड देयरफॉर कलेक्टर करंट IC बिगिंस टू फ्लो इन NPN ट्रांजिस्टर। और इसके बाद में ये करंट हमारी कलेक्टर के थ्रू कलेक्टर करंट की फॉर्म में जाती है और कलेक्टर के थ्रू हमारी इस FET में चली जाती है।
since off FET is off, so this collector current of NPN transistor acts as the base current of PNP transistor. तो ये हमारा FET ऑफ है, तो ये जो NPN ट्रांजिस्टर था इसकी जो कलेक्टर करंट थी वो कलेक्टर करंट PNP ट्रांजिस्टर के बेस को चली जाती है। तो इस बेस को बेस करंट हमारी मिल गई है एंड हेंस PNP ट्रांजिस्टर इज ऑल्सो टर्न्ड ऑन, और इससे हमारा ये PNP ट्रांजिस्टर भी टर्न ऑन हो जाता है। तो अभी तक क्या हो रहा था, ये एनोड करंट यहां से आई थी, ऑन FET हमारा ऑन था, ऑफ FET हमारा ऑफ था। ये करंट इसके थ्रू होती हुई यहां पर चली गई और इसके बाद में इस NPN ट्रांजिस्टर के बेस को चली जाती है बेस करंट के फॉर्म में, एंड देन इट गोज टू कलेक्टर एज ए इमिटर करंट, और इसके बाद में ये IC की फॉर्म में यहां पर आती है, और क्योंकि ये जो FET है ऑफ FET ये हमारा ऑफ है, तो ये जो कलेक्टर करंट है ये करंट इस PNP ट्रांजिस्टर के बेस को चली जाती है एज अ बेस करंट, इससे ये PNP ट्रांजिस्टर भी ऑन हो जाता है। NPN पहले ऑन हो गया था, PNP अब ऑन हो गया है, क्योंकि NPN ऑन होने के बाद में ये हमारे आउटपुट के अंदर करंट मिल रही थी जो कि बेसिकली हमारी कलेक्टर करंट होती है, और ये कलेक्टर करंट यहां से होती हुई PNP के बेस में चली जाती है। When both the transistors are on, regenerative action of the connection scheme takes place. अब जैसे ही हमारे दोनों ट्रांजिस्टर ऑन होते हैं, रीजनरेटिव एक्शन हमारा स्टार्ट हो जाता है एंड द थायरिस्टर और द MCT इज टर्न्ड ऑन, और यहां पर जो हमने कनेक्शन स्कीम दिखाई है उस कनेक्शन स्कीम के थ्रू जैसे ही हमारा रीजनरेटिव एक्शन स्टार्ट हो जाता है, थायरिस्टर या MCT हमारा टर्न्ड ऑन हो जाता है। सो दिस वाज द टर्न ऑन प्रोसेस ऑफ थायरिस्टर। नाउ टर्न ऑफ प्रोसेस। For turning off the MCT, off FET is energized by positive voltage pulse at the gate. तो अब MCT को टर्न ऑफ करने के लिए ऑफ FET को हम एनर्जाइज करते हैं, और इसके लिए गेट को हम पॉजिटिव वोल्टेज पल्स प्रोवाइड करते हैं। तो पहले हमने गेट को नेगेटिव वोल्टेज पल्स दिया था, इसलिए हमारा ये प्रोसेस हो गया था टर्न ऑन का। अब ये जो पॉजिटिव पल्स है ये पॉजिटिव पल्स हम गेट को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ये जो ऑफ FET है ये ऑफ FET हमारा एनर्जाइज हो जाए या इसको एनर्जी मिल जाए। सो ऑफ FET इज टर्न्ड ऑन एंड ऑन FET इज टर्न्ड ऑफ। तो टर्न ऑन प्रोसेस में जब हमने नेगेटिव वोल्टेज पल्स गेट को दिया था उस केस में ऑन FET हमारा टर्न ऑन हुआ था एंड ऑफ FET हमारा टर्न ऑफ था। अब टर्न ऑफ प्रोसेस में हम जैसे पॉजिटिव वोल्टेज पल्स इस गेट को दे रहे हैं, ये ऑफ FET हमारा टर्न ऑन हो जाता है, जबकि ऑन FET हमारा टर्न ऑफ हो जाता है। After off FET is turned on, either base terminal of PNP transistor are short circuited by it. तो जैसे ही हमारा ऑफ FET टर्न ऑन होता है, ये जो PNP ट्रांजिस्टर है इस PNP ट्रांजिस्टर के बेस को एक करंट फ्लो होती है और ये PNP ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाता है। So, anode current begins to flow through off FET. तो पहले जो हमारी एनोड करंट
ऑन एफईटी के थ्रू फ्लो हो रही थी, अब इस केस में एनोड करंट हमारी ऑफ एफईटी के थ्रू फ्लो होती है एंड देयरफॉर बेस करंट ऑफ पीएनपी बिगिंस टू डिक्रीज। तो ये जो एनोड करंट है ये यहां के थ्रू यहां पर आ गई है, ऑफ एफईटी में एनोड करंट फ्लो हो रही है और ये जो एनोड करंट है ये क्या करता है, ये जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है इसमें बेस करंट को डिक्रीज करना स्टार्ट करता है। सो कलेक्टर करंट ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर दैट फॉर्म्स द बेस करंट also begins to decrease। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर का कलेक्टर करंट जो कि बेस करंट फॉर्म करता है वो भी हमारा डिक्रीज होना स्टार्ट करता है। तो ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर, यहां पर कलेक्टर करंट और ये करंट यहां से होती हुई इस बेस करंट को मिल रही है, ये करंट भी हमारी डिक्रीज होना स्टार्ट करती है। In this way, the base current of PNP and NPN transistors divide storage charge in their N and P bases respectively begins to decay। तो इस प्रकार PNP और NPN ट्रांजिस्टर की बेस करंट स्टोरेज चार्ज को उनके N एंड P बेसेस में डिवाइड कर देती है और इससे वैल्यू हमारी डीके होना स्टार्ट करती है। दिस रीजेनरेटिव एक्शन टर्न्स ऑफ द एमसीटी। तो इस केस में रीजेनरेटिव एक्शन हमारा एमसीटी को टर्न ऑफ कर देता है। तो जब आपने गेट को नेगेटिव पल्स दी थी उस केस में ऑन एफईटी हमारा ऑन हुआ था, ऑफ एफईटी हमारा ऑफ हुआ था, और जब गेट टर्मिनल को आप पॉजिटिव पल्स दोगे तो ऑफ एफईटी हमारा ऑन होगा और ऑन एफईटी हमारा ऑफ होगा और लास्ट में जाके पूरा एमसीटी हमारा टर्न ऑफ हो जाता है। तो जब आप गेट को नेगेटिव पल्स दोगे तो एमसीटी हमारा टर्न ऑन होगा और जब गेट को आप पॉजिटिव पल्स दोगे तो एमसीटी हमारा टर्न ऑफ होगा। नाउ एडवांटेज ऑफ एमसीटी। इट हैज लो फॉरवर्ड कंडक्शन ड्रॉप। तो एमसीटी का फॉरवर्ड कंडक्शन ड्रॉप लो है। इट्स टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ टाइम इज वेरी फास्ट। तो एमसीटी का टर्न ऑन टाइम एंड टर्न ऑफ टाइम वेरी फास्ट है, इसलिए स्पीडली ये वर्क करेगा। इट्स स्विचिंग लॉस इज वेरी लो। तो दूसरे डिवाइस के कंपैरिजन में एमसीटी का स्विचिंग लॉस बहुत कम है। इट्स गेट इनपुट इंपीडेंस इज वेरी हाई। तो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं। यहां पर हमने एमसीटी क्या है और एमसीटी की क्या एडवांटेज है उनको डिटेल में लिया है। सो गुड बाय।